ये वीडियो ये वीडियो काइंडली स्किप बंद कर दें, कुछ की वीडियोस आ रही हैं। Okay, let's start our session. Let's resume the talk we left yesterday. So we were discussing ECG, okay? And what we discussed that the ECG, first we see the standardization, then we see the rhythm. The second thing we discussed the rate. After rate, then what we discussed the axis. After axis, we check the different waves. We have three waves. We see the P wave, the QRS wave, the T wave, and now we are dealing with the interval and the segments. And then we see the how you can going to diagnose the ventricular hypertrophy, and then we will do some practice. Okay, so this is the outline for today's lecture. So start with the intervals and segments. We already discussed that we have two segments and two intervals which are very much important. But among the intervals, we will discuss two intervals. We have already defined PR interval and QT interval. And the important segment which we're going to look is the ST segment. Okay. So let's do the, yes. So again, for the repetition, just to recall that what is the PR interval? So I already told you that the interval is basically comprises wave along with the segment. So in the PR interval, you have the P wave, you can see in this ECG, and along with the P wave, you have the PR segment. Okay. Okay, so this is the P wave and this is the segment. Okay, so it comprises of P and the PR segment, and it is called PR interval, and it is very, very important, especially when you are dealing with the heart blocks, and we will cover all the heart blocks now. Okay, next is the after the PR interval, the second interval, which is very important, is the QT interval. And the QT interval starts from the start of the Q wave and end till the end of the T wave. So it's from start of the Q wave till the end of the T wave. This is QT interval. It comprises of two waves. First is the QRS and second is your T wave. So it comprises of two waves plus one segment, which is ST segment. Okay. So this is all related to the, you can say, for the revision for these interval and segments, which we're going to cover. And what is the ST segment? ST segment is the segment which is in between the QRS and the T wave. Okay. So first, PR interval. So if we look at the PR interval, we should know the normal PR interval. We have already discussed what is P wave, what is the interval. The normal P wave, what I told you, the formula for the normal P wave is comprises of the size wise, it is 2.5 multiplied by 2.5. Yes. So 2.5 in a lengthwise and in a widthwise, both. You should remember the word 2.5 small boxes. But for PR interval, it should be 3 to 5 small boxes, 3 to 5. So PR interval contain P and the PR segment, and the total duration should be 3 to 5 boxes, which also called 120 to 200 milliseconds. Okay. Now, why it is important to look for the PR interval? So PR interval, we have discussed the normal duration. So if it is smaller, means if it is less than 3 small boxes, less than 120, less than 3 small boxes, we call it as a short PR interval. And short PR interval is only important for one condition. Only one condition is related to the short PR interval, which is called as WPW syndrome. Okay. So WPW syndrome, the short PR interval, so we will discuss in detail about it. And if we talk about the prolonged PR interval, it is related to the conditions which is related to the block, especially the first degree block. Okay.
So it is associated with more than 5 small boxes. You can see in this example, in this ECG, the PR interval is comprises of almost 8 small boxes in this ECG. So if it is more than 5 small boxes, more than 200 millisecond, it is considered as prolonged PR interval. Now, how you going to approach with the PR interval? So let's discuss that approach. This is a very important approach which is in front of you, and we will cover or we will practice the ECGs on this logo. Okay? So how you going to approach? First of all, when you start, look at the ECG and you have seen that the P wave is present. Okay, so first thing what you detect is this is that the P wave is present. The first thing is that the P wave is present. Now, after seeing the P wave, the second thing which you will going to see, just a second. Okay, no, I'm so sorry. Yes. So first you observe the P wave ECG. Then how you going to check the first thing? The first thing you have to categorize whether the PR interval is fixed or variable. So PR interval could be short, could be long, could be variable as well. Okay. So fixed PR interval means that the duration of the PR interval is same throughout your ECG. That is called fixed PR interval. So if you have seen that the PR interval is not changing in your ECG, it is fixed, then you have to categorize that PR interval either as a prolonged PR interval or short. So short is missing over here. See, the short or the prolonged you categorize if the PR interval is fixed. If it is not fixed, variable, we will see in the ECGs, then how you going to approach them. So if it is fixed PR interval, you see the PR interval either prolonged, either short, or either normal. So you have how many categories you have? You have 3 categories. Okay. You have normal PR interval, you have prolonged PR interval, or you have short PR interval. Is this okay? So first we talk about the PR interval if it is prolonged. If it is prolonged PR interval and it is fixed, it means this is first degree heart block. First degree heart block mein what you will going to find that the PR interval would be same throughout your ECG, but it will only prolong. In first degree heart block, the PR interval only prolong. Okay. Then you see the short. The short we will going to cover that it is associated with WPW syndrome. It is only one condition which is associated with short PR interval. Third situation is normal PR interval. So if the PR interval is fixed and normal, then you will not relax. You will see or you will look for any missing or drop QRS. Okay? You will look for the drop QRS in that situation. Okay? You will look for the drop QRS. If the normal PR interval, please remember this approach. If the PR interval is normal, if it is fixed, and if it is associated with dropped QRS, then you will going to label it as a Mobitz type 2. Okay, so you have a Mobitz type 2 is associated with, okay, what is Mobitz type 2? Second degree block is categorized into 2 types. The first degree is only the first degree. It has no further categorization. But if we talk about the second degree, it is associated with 2 types, Mobitz type 1 and Mobitz type 2. So what happened in the Mobitz type 2? Your PR interval will going to be fixed, but it is associated with drop QRS. And it has also normal PR interval. It is not prolonged, it is not short. So normal, fixed, drop QRS, it is labeled as Mobitz type 2. Okay. If it is no drop, agar drop bhi nahi hai aapke uske andar, there is no drop, then how you going to categorize it?
अगर फिक्स्ड है आपका पीआर इंटरवल, नॉर्मल है, देन आप चेक करेंगे कि आपका जो आर है वो रेगुलर है या इरेगुलर, which we have already discussed. That part we have already discussed कि अगर पी वेव प्रेजेंट है, पीआर इंटरवल फिक्स्ड है, कोई ड्रॉप बीट नहीं है, देन थिंक अबाउट कि वो आर नॉर्मल है या एबनॉर्मल है. So if it is आर नॉर्मल है, that means it is the regular rhythm. तो उसमें फिर आपने रेट देखना है कि आइदर साइनस ब्रेडिकार्डिया है या फिर साइनस टैकीकार्डिया है. और इफ इट इज इरेगुलर, then you go for the sinus arrhythmias. Is this clear? This approach is clear. If it is fixed PR interval, now moves towards the variable PR interval. That means the PR interval is keep changing throughout your ECG. So what you will going to look for that? If the PR interval is variable, it's keep changing, then you will going to look at the RR interval. You see that the RR interval is regular or not. If the RR interval is regular, then you consider it as a third degree block. So see, the block become very easy. First, you look at the PR interval, it is fixed or variable. If it is variable with regular RR wave, then you will going to categorize it as a third degree block. But if RR interval is irregular and variable PR interval, then you will going to categorize it as a Mobitz type 1. So keep this chart in your mind, and we will going to talk about this chart as we will practice the different ECGs. Okay. Any question regarding it? Okay. So again, we have categorized the hard block, the fixed PR interval, the constant PR interval. It is categorized into two types. The first degree hard block may you can see that you only find that you have a prolonged PR interval. In second degree type 2, the PR interval would be same. If you see this ECG, the second ECG, it is a short strip even though, but if you look at the PR interval in this ECG, if you look at the PR interval in this ECG, it is normal. It is normal and fixed. It is not changing, but it is associated with drop beats. You can see it is associated with dropping of the beats. So this P wave does not transmit the QRS. So this is called drop beat second degree block. If the PR interval is variable, so how you see it is variable, check the difference between these two types. The PR interval is keep changing, okay? It is prolonging, it is increasing or decreasing, it does not matter. But if you see that the PR interval is not fixed, then the second thing you will look for the RR. You will look for the distance between the two R waves. If the two R wave distance is regular, then you will label it as a third degree block. And if it is not regular in this ECG, you can see that it is not regular. यहाँ पे prolong है, यहाँ पे decrease है. So if it is not fixed, if it is not regular, think this is Mobitz type 1. And if it is fixed throughout, this is called third degree block. And we will practice in the ECGs. Okay? Is this clear to everyone? Dr. Ikram, is this clear? Okay. Now see this ECG. What you are seeing in this ECG. Please. आपने क्या देखा? इस ECG के अंदर अब आप इंटरप्रेट करते जाएं, जो आपका चार्ट है उसको मेमोराइज करते जाएं. क्या इंपॉर्टेंट चीज थी? सबसे पहले आपने पिक किया कि आपके पास यहाँ पे P wave आ रही है कि नहीं आ रही. This is very important. Okay. So if you see this QRS complex, what you going to find in the first talking about? Can you see the P waves? Yes, this is the P wave. This is the small P wave. Yes. Can you see the P waves in this ECG? This ECG is
quite, it's not very good ECG. It's very difficult to, pick it. Just wait. इसमें आपको जो है ना यहाँ पे नजर आ रहा है टी वेव के साथ आपकी पी वेव मर्ज हुई है। अगर आप यहाँ पे नोट करो ना, ये टी वेव बाइफिड आ रही है। यहाँ पे भी अगर आप नोटिस करो, ये आपकी पी वेव है, ये आपकी पी वेव है, ये आपकी पी वेव है। दिस इज योर पी वेव। सी, जो मैंने एरोज मार्क किए, दीज ऑल आर योर पी वेव्स। एंड इफ यू सी द पी वेव, देन आपने सेकंड थिंग पी आर इंटरवल देखना है। सो पी आर इंटरवल इज मोर देन 5 बॉक्सेस फॉर ईच। सब में आपको इक्वल मिल रहा है, फिक्स मिल रहा है, एंड मोर देन 5 बॉक्सेस। सो दिस इज ऑल योर पी वेव्स। ओके, दिस इज फिक्स्ड पी आर इंटरवल। द फर्स्ट थिंग आपने फिक्स देखा, फिक्स्ड के बाद आपने देखा प्रोलॉन्ग है, प्रोलॉन्ग होने के बाद आपने फॉरन कैटेगराइज कर दिया। अगर प्रोलॉन्ग है, फिक्स्ड है, तो आपकी क्या चीज आ जाती है? सिर्फ एक ही कैटेगरी है, दैट इज फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। ठीक है, नाउ लुक एट द सेकंड ईसीजी। सेकंड ईसीजी में हमें क्या नजर आ रहा है, हम खुद से इंटरप्रेट करेंगे। हमें यहाँ पे सबसे पहले पी वेव सर्च करनी है। तो हमने पी वेव सर्च कर ली। दिस इज योर पी वेव, दिस इज योर पी वेव, this is your P waves. Okay, I've marked the P waves for you. This is your again P waves. So what you're going to find in this P wave आपको मिल रही है। Next thing आपने PR interval देखना है। So if you look at the PR interval, the PR interval is normal throughout. The PR interval is fixed. It is not changing. The PR interval is fixed. It is not changing, but the PR interval is slightly prolonged, but not that much. Is that PR interval is, you can say it is fixed or it is variable? I can see it is variable. If you see this and if you see this, it is quite variable. It is changing. It is not fixed. Okay, so look the carefully. So if you see, it is not fixed, it is variable. The distance in this, this is a short PR interval over here, and over here the PR interval is prolonged. Okay, so if it is variable, the rule is look for the RR waves. Simple, look for the RR waves. So if you see the RR waves, the RR waves are not regular, they are irregular. So if you have variable PR interval with RR irregular, go for the Mobitz type 1. Mobitz type 1. Is it clear to everyone? Okay. Am I talking to myself or the things are clear? Please speak up. Now look at the next ECG. Yes. What you find in this next ECG? Who will going to participate? Yes. Who will going to participate? See, don't look at the answers. Just approach yourself. What you're going to find in this ECG, the first thing is the P wave. Start with the P waves. The P waves are there. See, this is the P wave, this is the P wave, this is the P wave, this is the P wave. All are the P waves. Second thing is look for the PR interval. You see the PR interval is normal. PR interval is normal. 3 to 5 boxes. PR interval normal. PR interval normal है। देन क्या चीज देखनी है? आपने देखनी है ड्रॉप बीट के लिए। जब भी आपको पीआर इंटरवल नॉर्मल मिल रहा है, लुक फॉर द ड्रॉप बीट. इज देयर एनी ड्रॉप बीट यू कैन फाइंड? यस, you can appreciate this is the T wave, this is the P wave, there is no QRS over here. This is no QRS over here. That means it is associated with drop beats. There is no QRS complex with this P wave as well. This P wave is also not having QRS. So if you have a normal fixed PR with drop beat, then you will going to label it Mobitz type 2. Okay. Now see the next example. What you see in this example, did you find the P wave? Yes, I find P wave, P wave, P wave, P wave. So we have different P waves are there. And if you see they are variable PR interval, yes. If you see this PR interval and if you see this PR interval, it is variable. So yes, it is associated with variable. So what I told you for variable PR interval, look for the RR.
RR waves are regular. So if RR are regular with variable PR interval, go for third degree heart block. Is that clear? Dr. AKU, is this clear to you or not? Yes. No one is to say anything. अगर things clear नहीं है तो पूछे. Clear? Is it clear? Okay. Okay. Thank you. Now we talk about. Okay. Now we talk about, we have already discussed the PR interval. This part we have already covered. It is just the repetition. This chart is the repetition we have already covered in the last class, that if we look at the QRS complexes, then QRS complexes is categorized into narrow QRS complex and the wide QRS complex. So if you have a narrow QRS complexes, it is associated with 4 conditions. What are the 4 conditions? We have already covered. We have this we have the you can say sinus tachycardia, supraventricular tachycardia, atrial flutter, and atrial fibrillation. 4 conditions come under the category of narrow QRS complex, and we have discussed in detail about in our first lecture. Then we talk about the wide QRS. What do you mean by the wide QRS? If the duration of the QRS is more than 3 small boxes, then we have to think for 2 things. What are the 2 things which is relevant to it? The first, the wide QRS is associated with the bundle branch blocks, which we have covered in our lecture. And the second thing, the wide QRS complex are associated with if the origin of the, you can say the electricity is from the ventricle. If it is not originating from SA node, rather it is originating in the ventricle, then definitely if they are originating in the ventricle, they have to spread to the entire ventricle through the myocardium. So myocardium takes long time to spread those conduction. That is why it is associated with the broad QRS. And they are associated with 3 conditions: the ventricular tachycardia, torsi pointis, and ventricular fibrillation. And we will see all these 3 things when we see the different ECGs. Okay. Okay, so next, now start practicing. अब हम इसको यहाँ practice करते हैं चीजों को, और अब हम look करते हैं जो अब हमने अब तक, अभी सिर्फ hypertrophy रह गया है. ठीक है, हमने सारी चीजें discuss कर ली हैं. अब हम इस ECG में learn करेंगे, practice करेंगे. अगर कोई participate साथ साथ करेगा जिसने कल की भी क्लास ली है तो उसे सबसे ज्यादा फायदा होगा. Now tell me one by one who will going to participate. Otherwise मैं बोल दूंगी चीजें, ठीक है. But कोई Rida, you were there yesterday? Rida, are you there? Yes, I'm there. I'm here. So you were there in class yesterday? Yes, I was there. So just start practicing it. It will be easy. First thing, सबसे Okay. पहले क्या चीज देखनी है? Standardization. Standardization. तो क्या Yeah. आपको standardization इस ECG में नजर आ रही है? Yes, Can you it is appreciate? present 2 large boxes. Yes, so it is 2 large boxes. आपकी इसमें standardization is there. तो ये normal ECG है, standard इसका normal है, ठीक है? This is the you Yes. आपने यहाँ पे standardization देख ली, ठीक है? Second thing, अब हमने क्या चीज देखनी है ECG में? Heart rhythm. Rhythm. P wave is present or not. रिदम देखनी है और हार्ट रेट Yeah. देखना है. तो इसके लिए Yes, हमें कौन सी rhythm. स्ट्रिप? लॉन्ग लीड. तो इसके Long अंदर lead. इस ECG लॉन्ग लीड आपकी कौन सी है? V1. V1 है, ठीक है. सो अब आप इसको रीड करोगे. 2 इज नॉट द फिक्स रूल. अब आप मुझे बताएं रिदम क्या है इसकी? Rhythm में ये देखते हैं कि P wave हो, उसके बाद QRS complex होना चाहिए, और या P wave, QRS complex, and then तो आपको यहाँ पे P waves regular नजर interval आ रही between हैं. RR. Yes, P waves are Okay. present. Yes, P waves आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं. Or yeah, you can appreciate. Let me draw it. This is all P wave. You can see the P wave, the P wave, the P wave. ठीक है. P wave आपने देख ली. That means के origination आपका sinus हो रहा है. ठीक है.
दूसरा क्या हाँ आपने जी, देखा रिदम में आर का डिफरेंस, तो आर का RR डिफरेंस रेगुलर है, रेगुलर इट इज नॉट इरेगुलर। तो यस आपने कहा कि आर आपका रेगुलर है, ठीक है। पी वेव आपको नजर आ रही है, तो आपने इसको अभी साइनस लेबल किया। फिर आपने इसका हार्ट रेट देखा, तो रेट इसका क्या चल रहा है, अगर आप इसका रेट देखो तो ऑलमोस्ट कितना आ रहा है, कितने बॉक्सेस आ रहे हैं, अगर आप इस वाले को काउंट करो तो कितने बॉक्सेस आ रहे हैं, 2 ऑलमोस्ट large 2 boxes लार्ज बॉक्सेस आ रहे हैं। कितने बॉक्सेस आ रहे हैं, 2 लार्ज 2 बॉक्सेस आ large रहे हैं। 2 लार्ज बॉक्सेस हमने 300 हमने ऊपर रखा था डिवाइडेड बाय 2, तो इस वक्त आपका रेट कितना चल रहा है 150, ठीक है। तो 150 yes इसका रेट चल रहा है, और इसके ठीक है। अब आपने अपना रेट रिदम निकाल लिया, अब आप एक्सिस पे आ जाओ। इसका एक्सिस क्या है, एक्सिस के लिए कौन axis सी देखनी है आपको, lead 1 and AVF AVF। So what is the axis in this ECG? लीड 1 में जो है वो पॉजिटिव रिफ्लेक्शन है और AVF में QRS कॉम्प्लेक्स आई QRS थिंक कॉम्प्लेक्स किस डाउनवर्ड तरफ है है, किस तरफ है, डाउनवर्ड्स है डाउनवर्ड है, तो या नेगेटिविटी है आपकी डाउनवर्ड AVF के अंदर, ठीक है। यस तो एक्सिस आपका कहाँ पे हुआ इधर, इधर ये नेगेटिव रिफ्लेक्शन है तो आप अगर मुश्किल हो रही है, रिमेम्बर नहीं हो रहा, तो हम क्वाड्रेंट बना लें, यस ठीक है। इफ वी मेक द क्वाड्रेंट लाइक दिस, हमें पता है लीड 1 पॉजिटिव है, डेफिनेटली समवेयर यहाँ पर है, ठीक है। और फिर हमें पता है कि AVF नेगेटिव है, तो नेगेटिव मींस ऊपर है, तो कौन से इसमें इंटरसेक्ट कर रही है, इस वाले रीजन के अंदर, ठीक है, लेफ्ट एक्सिस वाले। अब इस अगर इस रीजन में आती है तो फिर हम क्या चीज देखते हैं, लीड 2 देखते हैं लीड 2 देखते हैं। सो व्हाट यू कैन सी इन द लीड 2, लीड 2 में तो पॉजिटिव ही है आई थिंक लीड 2 हम अब पॉजिटिव कह लो, आइसो इलेक्ट्रिक कह लो, आइसो इतनी इलेक्ट्रिक या आइसो इलेक्ट्रिक कह लो, इतनी कोई कंक्लूसिव नहीं है आपकी, ठीक है ना। आइसो इलेक्ट्रिक होती है लीड 2, तो फिर आप AVL को भी देख सकते हो, लेटरल लीड्स को भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये कंक्लूसिव नहीं है, तो आप इसको किस में डाल दोगे, नॉर्मल एक्सिस में, किस में नॉर्मल डालोगे, एक्सिस तो आप फिर इसको लेफ्ट एक्सिस में नहीं डालोगी, तो ये एक्सिस आपका क्या हो गया, नॉर्मल एक्सिस हो गया, ठीक है। नॉर्मल एक्सिस है, हार्ट रेट आपका 150 आ रहा है, ठीक है। अभी आप अपने चीजों को लेके चलो, एक्सिस के बाद अब आपने क्या चीज देखनी है, वेव्स देखनी है वेव्स वेव। देखनी है अब आप वेव्स में कौन सी, पी वेव से स्टार्ट करोगे, ठीक है। पी देखनी है, QRS देखनी है, और टी वेव देखनी है, ठीक है। तो हमने पी वेव का क्या रूल बताया था, पी वेव 2.5 by 2.5 की ठीक है, पी स्मॉल वेव एक्सिस होनी चाहिए 2.5, ठीक है। तो पी वेव आपको यहाँ पे नजर आ रही है, लेकिन कोई चीज आपको यहाँ पे अप्रिशिएट हो रही है, ये क्या आपको, ये क्या बीच में इतना अजीब सा ये लग रहा है, कुछ आपको फील हो रहा है, ये क्या चीज आ रही है, ये मैं कहना चाह रही हूँ, जस्ट सेकेंड, ये किस तरह का ये पैटर्न आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ये क्या चीज है। अगर आप पी वेव्स को देखो, आपको लग रहा है ये 2-3 पी वेव्स मिल रही हैं, कोई फ्लटर टाइप लग रहा है आपको ये, या फ्लटर जी ठीक है। तो समझ लो या यहाँ पे 2-3 आपकी पी वेव्स आ रही हैं एक साथ, ठीक है। इसी वजह से आपको 100 टूथ पैटर्न लग रहा है, ठीक है, दिस इज अ 100 टूथ पैटर्न। फिर आप अगर QRS को देखो, तो एट्रियल फ्लटर में हमने QRS कॉम्प्लेक्सेस कैसे पढ़े थे, नैरो, ठीक है। तो QRS कॉम्प्लेक्सेस नैरो है ना, इट इज विद इन, देखो 3 बॉक्सेस से भी कम का ड्यूरेशन है, तो नैरो QRS कॉम्प्लेक्सेस विद मल्टीपल पी वेव्स है, ठीक है। टी वेव को अगर आप देखो, टी वेव का क्या रूल पढ़ाया था मैंने आपको, कि V1 में आपको टी वेव्स कौन सी मिलती है, मतलब इन्वर्टेड नॉर्मल होंगी वो आपको, यस। upright अगर in all leads except ईयर V1 बच्चा है, लेस देन 7 ईयर 7 बच्चा है, years मोर देन 7 डेज है, तो आपको more than इन्वर्टेड 7 वेव्स मिलेंगे, और बाकी सारी जगह पे आपको क्या होती है, upright अपराइट। मिलेंगी देखो अपराइट है, अपराइट है, तो आपको अपराइट टी वेव्स मिल रही, बट यहाँ पे टी वेव्स फ्लटर के अंदर गुम हो गई है, ठीक है, बहुत क्लियर कट आपको अप्रिशिएट नहीं हो रही है, ठीक है। फिर अब आप आ जाए इंटरवल्स के ऊपर, तो इंटरवल की तो क्योंकि ये आपको नजर आ रहा है QRS कॉम्प्लेक्स स्मॉल है, टेकिकार्डिया है, ठीक है। तो PR इंटरवल जब आप ज्यादातर देखते हैं, वो किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, ब्लॉक्स के साथ, वो blocks टेकिकार्डिया के साथ एसोसिएटेड नहीं होते, बल्कि किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, मोर टुवर्ड्स
bradycardia. So you are dealing with the tachycardic. This is the 150 heart rate. This is atrial flutter with the normal axis. Okay, is this clear? Okay. Yes. Okay, that's great. आपने practice करी, आप आए, you come up and that's great. Now who will come next? Quickly आप लोगों ने आना है अगर आप लोगों ने ज्यादा practice करनी है, वरना फिर मैं बोल बोल के चली जाऊंगी. Now we have a next ECG. खुद से भी बोल सकते हैं जिन्होंने भी कल क्लास ली. डज नॉट मैटर कि हमें नहीं आता या आता है. इट डज नॉट मैटर. कम अप. आएंगे तो लर्न करेंगे. बाबा तान के रखो. कौन आ रहा है भाई, जल्दी से बताओ. Who will come? Tobia, you will going to participate? Anam, you were also there, I think, yesterday. Anam, will you participate? नहीं, कोई भी नहीं करना चाहता participate है. रिदा, रिदा, you were also there. No? Yes, ma'am. Who is participating? Name Sobia. रिदा. कौन कर रहा है? दोनों का माइक ओपन है. Ma'am, I'm here. You रिदा, okay, that's great. चलो रिदा, इसको करो, स्टार्ट करो जल्दी से. कहाँ से एक्सेस और डायग्नोसिस बताना है. स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट. क्या चीज हमने देखनी है सबसे पहले? Standardization practice. स्टैंडर्डाइजेशन आपकी ठीक है. Yes. ठीक है. उसके नेक्स्ट बाद आपको क्या है लिखना है? rhythm रेट और और rate रिदम. देंगे. रेट और रिदम Yes. देखने के लिए आपको लॉन्ग स्ट्रिप दी भी उन्होंने Long नहीं दी strip हुई. नहीं दी है. नहीं दी ठीक है, हुई. लॉन्ग स्ट्रिप नहीं उसके दी हुई. बाद access. कमेंट, अगर लॉन्ग लीड आपको ना दियो तो कमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट थिंग, अब आप उसको छोड़ दो. ठीक है. फिर ठीक किस है. पे आ जाओगे आप उसके बाद? Access पे आ जाएंगे. एक्सेस देख लो. तो बताओ एक्सेस पे कमेंट. अच्छा, ये देख लो, पी वेव नजर आ रही है आपको सब जगह? P wave yes नजर आ रही है. नजर आ रही है. चलो ठीक है. अब आप आगे बढ़ो एक्सेस पे. P wave एक्सेस क्या है जल्दी से बताओ. एक्सेस लीड 1 में पॉजिटिव है और AVF में भी पॉजिटिव है और गुड. सो इट इज नॉर्मल एक्सेस. ओके, नॉर्मल एक्सेस. तो एक्सेस आप नॉर्मल आ रहा है. ठीक है. फिर एक्सेस की बात जी. खत्म हो गई. अब हम किस पे जाते हैं? पी वेव को वेव्स पे. देखते हैं, P क्यूआरएस को waves को देखते हैं और टी जी. वेव्स को देखते हैं. ठीक है. तो आपको क्या दिख रही है? पी वेव यहाँ पे दिख रही है. आपने इसको मार्क कर ला. मैं मार्क करती हूँ आपके लिए. आई एम मार्किंग इट. So where is the P wave? So if you look very carefully, ये आपकी P wave देख रहे हो आप, क्या मैंने मार्क की है. लॉन्ग लीड Yes, अगर होती तो आपको और अच्छी नजर आती. तो everyone can appreciate the P wave now. अब मैंने ये आपको मार्क करके दे दिए यहाँ पे. ठीक है. तो ये P waves आपकी आ रही हैं. ठीक है. तो अब QRS कॉम्प्लेक्स किस तरह का नजर आ रहा है आपको? थोड़ा प्रोलॉन्ग या नहीं. QRS कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा देखने में क्या लग रहा है? प्रोलॉन्ग लग रहा है. ब्रॉड लग रहा है. ठीक है. मोर देन 3 बॉक्सेस अगर आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हो तो लिटिल ब्रॉड होता है. सही है. टी वेव्स अगर आप देखो अपने उसके अंदर, तो टी वेव्स आपको यहाँ अप्रिशिएट हो रही हैं. हो रही है P टी waves वेव. yes. टी वेव्स ये देखो, ये रही. तो टी वेव यहाँ पे आपको क्या नजर आ रही है? V1 के अंदर नॉर्मली टी वेव्स क्या होनी चाहिए? इन्वर्टेड होनी चाहिए. अपराइट आएंगे. यहाँ पे आपको अपराइट नजर आ रही. कोई प्रॉब्लम है? ठीक है. अगर अपराइट टी वेव आपको मिल रही है अंडर 7 ईयर, 7 ईयर्स की बात अगर आ रही है तो कोई मसला नहीं है. 7 ईयर अगर आपको अपराइट टी वेव है तो इट इज एसोसिएटेड विद राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी. ठीक है. बट राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी की फिर हम और साइन भी देखेंगे. अभी हम इस सिर्फ एक बेसिस पे नहीं लेबल कर सकते. चलो, अब हमने ये तो देख लिया, टी वेव्स इस पर देख ली. नाउ वी टॉक अबाउट द इंटरवल्स. इंटरवल के अंदर पीआर इंटरवल कैसा लग रहा है आपको? इस वाले को अगर आप देखो तो आपको पीआर इंटरवल कैसा लग रहा है? शॉर्ट. एक मिनट. शॉर्ट लग रहा है ना? काफी Yes. शॉर्ट लग रहा है. और अगर बहुत ज्यादा नोटिस करो तो आपको यहाँ पे कोई स्पेसिफिक सी वेव अपेयर हो रही है? ये वाला पार्ट अब मैं मार्क कर रही हूँ, देखिएगा. ये वाली चीज, ये वेव थोड़ी सी स्लर्ट सी अपियरेंस दिख रही है.
दिस इज कॉल्ड Yes. डेल्टा वेव्स। ये जो थोड़ी सी स्लरिंग है, देखो पी वेव के बाद थोड़ी सी ये जो स्लरिंग होती है इस तरह की कॉन्केविटी होती है, दिस इज कॉल्ड डेल्टा वेव। ठीक है, तो पी आर इंटरवल इज वेरी स्मॉल इन दिस ईसीजी। और शॉर्ट पी आर इंटरवल के साथ मैंने कौन सी कंडीशन बताई थी? एक ही कंडीशन बताई थी, WPW syndrome. So this is the WPW syndrome है आपका, ये associated with the short PR interval. Just revise that. क्या क्या फाइंडिंग आपको इसमें मिलती है? WPW syndrome is the triad. So it is associated with short PR interval. And you can see the delta wave जो मैं यहाँ समझाना चाह रही हूँ. You can see in this picture. The delta wave is over here. Slide से आपकी slurring है. This is called delta wave. And third thing, you may find wide QRS complexes, जो कि आपको उस ECG में भी थोड़े से QRS complexes were wide. So this is a triad of short PR interval, delta waves, and the wide QRS complexes. Okay. Okay. Next ECG. This is the next ECG. Now who will come? Very good, Sobia. Now who will come? AQ Khan. Will you try? Will you try, AQ Khan? Ghulam Murtaza, will you try with me? I'm going to help you out. Don't worry. But come up. If you come or if you have that much confidence कि यार मुझे कुछ definitely सीखना है, तो मैं कुछ देखूंगा, बोलूंगा, तो मैं learn करूंगा. Yes. अगर मैं खुद से कर लूंगी तो फिर फायदा नहीं है. बताओ, जल्दी से आओ. ओके रिदा एक और कर लो. जी जी. लेट्स स्टार्ट. अब कोई पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता? अच्छा, क्या नजर आ रहा है? अब इसमें हम फिर से स्टार्ट करते हैं. देखो, हमें अपने वही चीज स्टैंडर्डाइजेशन इस ECG में हम देख सकते हैं. नो आई थिंक नजर नहीं आ रही. ठीक है ना, वो बॉक्स हमें नजर नहीं आ रही. वेरी गुड. नाउ कम्स टू आफ्टर स्टैंडर्डाइजेशन वी कम्स टू द रिदम एंड द रेट. सही है. तो रिदम और रेट अगर आप यहाँ पे देखो तो लॉन्ग लीड आपको दी हुई है. यस, लॉन्ग लीड दी हुई है. लॉन्ग लीड 2 इज. So what do you think? What is the rate over here? What is the rate? टैकीकार्डिक लग रहा है. मैं देख लेती हूँ. अगर आप गौर से रेट देखो तो कितना आ रहा है? तकरीबन 1.5 लार्ज बॉक्सेस आ रहे हैं. या 1.5 लार्ज बॉक्सेस. ठीक है, तो आपका रेट बिटवीन कितना चल रहा है? एक बॉक्स अगर होता है तो 300 होता है, 2 बॉक्सेस होते हैं तो 150 होता है. तो इसका रेट समवेयर 300 से लेके 150 के दरमियान के अंदर है. यू कैन से बी 200 220 एग्जैक्टली. अगर आपको देखना है तो फिर आपको स्मॉल बॉक्सेस काउंट करने हैं और स्मॉल बॉक्सेस को आपने किससे डिवाइड कर देना है? 1500 से. तो यू विल गेट द एग्जैक्ट रेट. तो जस्ट थिंक अबाउट कि ये इस वक्त रेट, लेट्स सपोज कि इस वक्त का रेट अराउंड 250 है. जस्ट थिंक अबाउट. तो इट इज अ टैकीकार्डिक. मोर देन 200 अगर आपका रेट आ रहा है तो यू आर डीलिंग विद टैकीकार्डिक. आर यू ओके? तो टैकीकार्डिक जब मैंने चीज आपको बताई थी, अगर आपको याद हो तो आप पे QRS कॉम्प्लेक्सेस को अगर देखो तो QRS कॉम्प्लेक्सेस किस तरह के आपको यहाँ पे लग रहे हैं? नैरो. आपको नैरो लग रहे हैं, वाइड लग रहे हैं? एक मिनट है. नैरो कॉम्प्लेक्स. हाँ, QRS कॉम्प्लेक्सेस ये देखो डियर, ये बिल्कुल नैरो है. देख रही हो आप? ये बिल्कुल नैरो QRS कॉम्प्लेक्सेस हैं. तो हमने क्या पढ़ा था? अब हम अप्रोच पढ़ रहे हैं. क्या अप्रोच पढ़ना? अब हम कौन सी अप्रोच पढ़ेंगे? इधर नैरो कॉम्प्लेक्सेस है हमारे पास और टैकीकार्डिया. तो कौन कौन सी 4 कंडीशंस थी उसके अंदर? सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया. वेरी गुड, एट्रियल फ्लटर, एट्रियल वेरी गुड, फिब्रिलेशन एंड साइनस वेरी गुड. एंड टैकीकार्डिया. SVT, एसवीटी. साइनस सुप्रा फ्लटर फिब्रिलेशन. वेरी गुड. तो अब आपको जैसे ही आपको टैकीकार्डिया मिला, आपको नैरो कॉम्प्लेक्सेस मिले, आप फौरन क्या सर्च करोगे? जल्दी से जाके क्या चीज ढूंढोगे? पी वेव. हमने पहले देख ली शायद. कैन यू अप्रिशिएट P waves over here? आई थिंक नॉट प्रेजेंट. P wave अप्रिशिएट हो रही है यहाँ पे?
पी वेव नहीं मिल रही, टी वेव एप्रिशिएट नहीं हो रही, ठीक है। ये टी वेव्स आ रही हैं जो हमें नजर आ रही हैं, ठीक है। एक ही वेव नजर आ रही है ना, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बाद दो वेव्स आनी चाहिए। सो इफ यू सी ओवर हियर यू जस्ट हैव वन वेव, दिस इज योर टी वेव, ओके, टी वेव। और अगर इसको पी वेव समझ भी लेते हो, समझ भी लिया, लेट सपोज तुमने समझ लिया, ठीक है, नॉर्मली तो ये टी वेव है, लेकिन अगर समझ भी लिया तो ये इन्वर्टेड आ रही है, ठीक है ना, इसकी डायरेक्शन अपराइट नहीं आ रही बल्कि क्या आ रही है, इन्वर्टेड। तो हमने एसवीटी के लिए क्या पढ़ा था, आइदर यू हैव एब्सेंट पी वेव और इन्वर्टेड, ठीक है। तो अब आपको जब पी वेव्स नहीं मिल रही तो दो कंडीशन है जिसमें पी वेव नहीं मिलती। वो कौन सी दो कंडीशन है जिसमें पी वेव्स नहीं मिलती? एसवीटी एंड एट्रियल फिब्रिलेशन। वेरी गुड, एसवीटी एंड एट्रियल फिब्रिलेशन। तो उसमें किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं इस कंडीशन के अंदर? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखेंगे रेगुलर है या फिर इरेगुलर है। वेरी गुड। सो व्हाट डू यू थिंक, इज दिस अ रेगुलर और इरेगुलर? रेगुलर। Regular with no P wave or inverted P wave, the diagnosis is supraventricular tachycardia. Okay, and now tell me the axis. इसका axis बता दो. एक्सिस लीड वन में Normal axis. Normal axis. Very good. Who say this normal axis? Okay. लेस देन 7 ईयर वाली बात समझ नहीं आई, ठीक हो गया। 7 ईयर में मैंने आपको ये बात बताई थी, मैं आपको नेक्स्ट ईसीजी में अभी ये बात क्लियर करती हूँ। वेट, अभी आती नहीं बात तो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, अब इसको कौन करेगा? इसमें क्या नजर आ रहा है? बहुत क्लियर, एक बड़ी सी चीज क्या नजर आ रही है? Broad QRS complex है, wide QRS complex. वेरी गुड, ब्रॉड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। आई एम हैप्पी कि आप लोग बोल रहे हो, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, जैसे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड का वर्ड आता है, मैंने क्या कहा था, उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या देखनी है? उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या देखनी है? जिस तरह से आपने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस नैरो देखे थे, तो नेक्स्ट चीज आपने पी वेव ढूंढी थी, ठीक है। इसी तरह जब वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस देख रहे हो तो क्या चीज नेक्स्ट ढूंढोगे? पी वेव। क्या ढूंढोगे? पी वेव। क्योंकि मैंने क्या बताया था कि वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस दो वजह से होते हैं। मेक द थिंग्स वेरी क्लियर, या तो ब्लॉक है या फिर वेंट्रिक्यूलर ओरिजिन हो रहा है रिदम का। तो अगर ब्लॉक होगा तो पी वेव मौजूद होगी। कैन यू फाइंड पी वेव इन दिस? इस लीड 2 की स्ट्रिप में पी वेव नजर आ रही है किसी को? No ma'am. No. नहीं आ रही। अब रिदम का ओरिजिन कहां से हो रहा है? वेंट्रिकल से हो रहा है, ठीक है। तो वेंट्रिकल से इसका ओरिजिन हो रहा है, ठीक है। और अगर आप इसका रेट देखो तो ये टैकिकार्डिक है, ठीक है। इसका रेट 2 बॉक्सेस आ रहा है 150। तो दिस इज वेंट्रिक्यूलर टैकिकार्डिया। ये क्या है आपका? वी टैक। क्या है ये आपका? वी टैक। वी टैक वेंट्रिकल से आपकी ओरिजिन हो रहा है। दिस इज कॉल्ड वेंट्रिक्यूलर टैकिकार्डिया। Now, what is the axis? Who will going to tell me the axis in this situation? Again, normal axis. नॉर्मल एक्सिस। No, dear. 1 के अंदर ये नेगेटिविटी, ये नेगेटिव वेव्स है, ये सारी नेगेटिव वेव्स है, ये पॉजिटिव वेव्स नहीं है, ठीक है। ये आपको ऐसा कंफ्यूजन हो रही है कि कुछ ऊपर भी जा रहा है ना, तो यू थिंक इट इज अ पॉजिटिव, बट ये आपकी नेगेटिव वेव्स है, ठीक है। तो 1 अगर नेगेटिव और एवीएफ भी नेगेटिव है, अगर दोनों ही नेगेटिव हो तो ये कौन सा एक्सिस होता है? एक्सट्रीम एक्सिस। Extreme axis deviation. Axis deviation. Okay. Now come to this ECG. ये ECG में क्या दिख रहा है? स्टार्ट करते हैं शुरू से। आपकी स्टैंडर्डाइजेशन नॉर्मल है? यस नॉर्मल है, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन सबको देखना आती है। फिर इसके बाद क्या चीज देखा? रेट एंड रिदम। तो रेट और रिदम अगर आप देखो इधर तो उसकी रिदम सही है, रेगुलर है, नजर आ रही रेगुलर है। पी वेव इसके साथ आ रही है कि नहीं आ रही? What you say? Can you appreciate the P wave in this? Yes, P wave is there or not? P wave नजर आ रही है, बोलो भाई, बोलो तो सही, बोलते ही नहीं हो आप लोग भाई।
बोलो, नजर आ रही है, नहीं नजर आ रही, कुछ तो बोलो। ये थोड़ी है कि बंदा साइलेंट ही रहेगा सारा वक्त। मैं नहीं बोलना है। हाँ, कुछ पी वेव इज देयर, ठीक है। तो पी वेव आपको अप्रिशिएट हो रही है। जब पी वेव आपको अप्रिशिएट हो रही है, दिस इज साइनस। व्हाट इज द हार्ट रेट इन दिस सिचुएशन? तो मोर देन 2 बॉक्सेस आ रहा है। तो अगर मोर देन 2 बॉक्सेस है तो जस्ट टेक इट एज अ 2.5 बॉक्सेस। तो रेट आपका कितना आ रहा है? 150 से 100 के दरमियान। 150 से कम ही है तो यू जस्ट टेक इट कि आपका हार्ट रेट ऑलमोस्ट 120 आ रहा है। So your heart rate is 120 over here, okay? So 120 is your heart rate, your rhythm is the regular. Now talk about after rate and the rhythm, we talk about the axis. What is the axis in this? Axis क्या है इसके अंदर? नॉर्मल एक्सेस। this is normal. Very good. So lead 1 और AVF में आपका axis भी Positive normal आ रहा है. reflection. Now look at the P, QRS and the T waves. What you going to appreciate over here? T waves are positive in V1, they should be negative. P waves आपको ओवरऑल अपराइट मिल रही हैं, ठीक है। उनका साइज But I भी was ठीक talking लग रहा about T है wave. और विड्थ भी सही लग रही है, ठीक है। तो पी मिट्राल और पी पल्मोनल वाली चीज भी नहीं मिल रही। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस देख रहे हैं तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस जो एक चीज मुझे यहाँ पे वो हो रही है, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट ठीक है, सही है, उसमें भी कोई ऐसे इशू नहीं आ रहा। दिस इज ऑल्सो राइट। देन व्हाट यू कैन सी ओवर हियर, टी वेव। अच्छा अब मेरी बात सुनो, जो टी वेव की जो मैं बात कह रही थी ना, नॉर्मली जो टी वेव होती है, जिसने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, 7 ईयर से पहले, 7 ईयर से पहले आपकी जो टी वेव होती है वो V1 लीड के अंदर डाउनवर्ड होती है, ठीक है। अगर एज मोर देन 7 ईयर्स हो जाए तो आपकी टी वेव्स अपराइट मिलती है, ठीक है। तो अगर आपकी अंडर 7 ईयर्स नॉर्मली वो डाउनवर्ड होती है, अगर वो आपको अपवर्ड मिलना शुरू हो जाए तो इट इज अ साइन ऑफ राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, ठीक है। ये मैं बात उस टाइम पे बता रही थी। तो अभी तो एज नहीं है तो हम एज की बेसिस पे उसको भी कैटेगराइज नहीं कर सकते। तो इस ईसीजी में आपको नॉर्मल एक्सेस मिल रहा है, आपको पी वेव सही मिल रही है, क्यूआरएस सही मिल रहा है, टी वेव्स आपको सब जगह नजर आ रही हैं, रेट सही है, 120 का है, ना टैकीकार्डिक है ना ब्रेडिकार्डिक है। पीआर इंटरवल अगर देखो, पीआर इंटरवल भी सही है। एसटी सेगमेंट अगर आप चेक करो तो वो भी रेज्ड रही है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज थोड़ी सी यहाँ पे टी वेव्स टॉल नजर आ रही है, ठीक है, वो भी इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट टॉल नहीं है। टॉल टी वेव्स कब कहते हैं? जब उसकी जो लेंथ होती है आर के मोर देन 2/3 हो जाए, ठीक है। तो इस पिक्चर को हम नॉर्मल ईसीजी कहेंगे। या आपके पास क्या आ रहा है, अगर आप 120 का हार्ट रेट कहते हो तो आप साइनस टेकिकार्डिया कह सकते हो। अगर आप तो एग्जैक्टली डायग्नोसिस कह रहे हैं तो 120 का जो रेट है वो साइनस टेकिकार्डिया है, ठीक है। तो द नॉर्मल एक्सिस विद साइनस टेकिकार्डिया, दिस इज द डायग्नोसिस, ओके। ठीक हो गई चीजें, क्लियर हो गई हैं? नेक्स्ट, दिस ईसीजी, व्हाट यू फाइंड इन दिस ईसीजी? क्या नजर आ रहा है? ये तो बिल्कुल देखते ही वाले ईसीजी, जो देख के ही बंदा बता देता है ये क्या चल रहा है। अपने पास रखें, ठीक है। यस, बताओ ये क्या लग रहा है, किसी को समझ आ रही है ये? डॉक्टर अनम, कैन यू से एनीथिंग अबाउट दिस ईसीजी? इस ईसीजी में भी अगर आप कॉम्प्लेक्सेस देखो, पी वेव नजर नहीं आ रही, ठीक है। जो क्लियर बातें हैं वो उनको बोलना सीखो। नो पी वेव कैन बी सीन इन दिस ईसीजी। सिर्फ और सिर्फ आपको बिजार सी, इरेगुलर सी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस दिख रहे हैं, वेरी बिजार। तो ये कौन सी आपकी जिसमें पी वेव ना हो, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस ब्रॉड टाइप के हों, बिजार से हों, तो आपके 3 डिफरेंशियल्स थे। वी टैक था, वी फिब था और टॉर्सिडी पॉइंटेड था। तो वी टैक की तो मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ ईसीजी, इसमें प्रॉपर्ली ऐसे ऐसे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस। तो ये जो बिजार पैटर्न है, जो छोटी छोटी सी है, दिस इज वी फिब,
बी फिब के बाद कौन सी स्टेट होती है? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो दिस चाइल्ड, दिस whatever the patient, this child is having a ventricular fibrillation, और ventricular fibrillation आपकी कौन सी ECG है जिसमें आपको शॉक देना है? अगर आपको इस बच्चे को वापस लेके आना है ना, गिव शॉक, otherwise it will convert into the cardiac arrest. Okay, so this is ventricular fibrillation. What is the axis in this ECG? इसका भी axis अगर आप 1 को देखें, consider it negative. AVF को भी अगर आप consider करें negative, so again this is extreme axis. Okay. Okay. Now the next ECG. अच्छा, इस ECG में जो है वो क्या चीज नजर आ रही है? Just a second. Yes. Yes. क्या दिख रहा है इस ECG के अंदर 6 में? अब आप यहां से अगर स्टार्ट करें, इनिशियली रिदम रेगुलर है, इरेगुलर है, तो इसकी जो लॉन्ग स्ट्रिप है वो आपके पास 2 लॉन्ग स्ट्रिप दी हुई है, V2 भी दी हुई है, V6 भी दी हुई, V1 भी दी हुई, 3 आपको लॉन्ग स्ट्रिप्स दी हुई है इसके अंदर, ठीक है। 3 आपके पास लॉन्ग लीड। आपको क्या चीज नजर आ रही है? सबसे पहले अगर आप स्टार्ट करें इस ECG को, किस तरह से आप स्टार्ट करेंगे? ठीक है, आपकी रिदम रेगुलर नहीं है, ठीक है, आपकी रिदम रेगुलर नहीं है, इरेगुलर रिदम आ रही है। जब आपकी इरेगुलर रिदम है तो आपने पहली चीज सबसे पहले क्या चेक करना है? पी चेक करना है, पी वेव्स, कि पी वेव्स आ रही हैं कि नहीं आ रही। रिदम इरेगुलर है, पी वेव्स है कि नहीं? कैन यू अप्रिशिएट द पी वेव इन दिस ECG? कैन यू अप्रिशिएट पी वेव्स? प्लीज स्पीक अप। Yes, P waves are visible. देखो, अब इसको मैं मार्क करती जा रही हूँ, सी, यस, वेरी गुड, दिस इज द पी वेव, 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 दिस इज द पी वेव। ढूंढने से मिलेगा, ढूंढोगे नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला। अब मुझे जवाब दो, किसने मुझे इसका आंसर किया था? नाम बताओ अपना। Maria. मारिया, मुझे बताओ PR इंटरवल इसमें फिक्स्ड है या वेरिएबल है? It's a फिक्स्ड है, variable. है। कैसे लग रहे हैं आपको PR इंटरवल? जो लीड टू रिदम स्ट्रिप है उसमें जो है PR इंटरवल वो ऑलमोस्ट है 1.5 नहीं नहीं, लार्ज मुझे स्केल। ये कैटेगराइज करो, फिक्स्ड है या वेरिएबल है? पूरी रिदम के अंदर एक जितना PR इंटरवल चल रहा है या अलग अलग चल रहा है? ये बताओ, सिर्फ ये बताओ, काउंट नहीं करो। अब मैंने जो बॉक्सेस बनाया उनके सिर्फ PR इंटरवल को गौर करो, क्या लग रहे हैं आपको PR वो इंटरवल? ऑलमोस्ट फिक्स्ड है। वेरिएबल है मैम। वेरिएबल। देखो, इसका नोटिस करो, इस वाली का नोटिस करो, और इस वाली का नोटिस करो, या इसका नोटिस करो और इसका, इन हाँ जी, दोनों को नोटिस करो जरा, क्या लग रहा है? वेरिएबल, ठीक है, गौर से। तो जब वेरिएबल आपका PR इंटरवल होता है तो आपके 2 ही डिफरेंशियल्स हैं, और वो कुछ पे डिसाइड होते हैं, आपका R का डिस्टेंस कितना है, ठीक है ना। R अगर आपकी रेगुलर है तो कौन सा डिफरेंशियल होता है? मारिया, कौन सा डिफरेंशियल होता है? हार्ट ब्लॉक, 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक। थर्ड। और अगर आपका R रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है, तो कौन सा डिफरेंशियल होता है? कौन सा होता है? मोबेट्स टाइप 1, टाइप 1, मोबेट्स टाइप 1, टाइप मोबेट्स टाइप 1 डिग्री। ओके, क्लियर? तो दिस इज मोबेट्स टाइप 1 ब्लॉक, ब्लॉक आ रहा है, ठीक है। इरेगुलर है आपके पास, वेरिएबल PR इंटरवल है, और अगर आप एक्सिस देखो 1 और AVF को, तो दोनों आपके अपराइट है, दिस इज नॉर्मल नॉर्मल एक्सिस। एक्सिस। ओके, नाउ लुक एट दिस ECG, इसमें क्या दिख रहा है? अब आप यहाँ पे देख रहे हो, बिल्कुल नैरो नैरो कॉम्प्लेक्सेस हैं, आपकी अप्रोच चेंज होती जाएगी। नैरो कॉम्प्लेक्सेस हैं, और नैरो कॉम्प्लेक्स के साथ मैंने 4 चीजें पढ़ाई थी अगर टैकीकार्डिया हो। इसकी रेगुलर भी नहीं है। एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन, व्हाई एट्रियल फिब्रिलेशन? Because the R waves are irregular and there Very is narrow complex tachycardia. is narrow complexes हैं, P wave you cannot appreciate it,
That is why it is atrial fibrillation. What is this? इसमें क्या चीज नजर आ रही है? क्या चीज specifically? Atrial flutter. So the quasar QRS complexes. This is torsion points or we. तो डियर फ्लटर कैसे बोला आप? इधर तो पी वेव्स ही नजर नहीं आ रही, इधर सिर्फ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस नजर आ रहे हैं. बट अगर आप एक चीज नोटिस करो उसके अंदर, ठीक है, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस लंबे लंबे और ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस छोटे छोटे, तो पॉलीमॉर्फिक है. कैसे है? पॉलीमॉर्फिक. पॉलीमॉर्फिक का मतलब कुछ लंबे कुछ छोटे. तो ये आपकी कौन सी ईसीजी हो जाती है? टॉर्सिडी पॉइंटेस, टॉर्सेट्स. ठीक है. तो आपको मैंने 3 बताई बातें कि अगर आपको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस ब्रॉड मिल रहे हैं, पी वेव नहीं मिल रही, थिंक अबाउट 3 डिफरेंशियल्स: वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड टॉर्सेट्स. तो टॉर्सेट्स इज अ पॉलीमॉर्फिक, कि कुछ आपके ऐसे लंबे लंबे होंगे, जस्ट लाइक मैं जो और क्लियर करने दी, लंबे, और फिर ये देखिए छोटे छोटे, फिर लंबे लंबे, फिर छोटे छोटे. तो ये आपको पॉलीमॉर्फिक इस तरह की अपीयरेंस मिलती है, कुछ बड़े कुछ छोटे. ठीक है. और इसमें भी अगर हम एक्सिस कहें तो एक्सट्रीम एक्सिस है. ठीक है. नाउ टॉक अबाउट दिस ईसीजी. अब इस ईसीजी को नीचे डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ो, ईसीजी से कंसिडर करो. आपकी लॉन्ग लीड आपको क्या दिखा रही है? ठीक है. सबसे पहले देखो रिदम रेगुलर है. ठीक है, रेगुलर रिदम है. आपने रिदम देखी, आपने हार्ट रेट देखा. हार्ट रेट ऑलमोस्ट अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो 3 बॉक्सेस से ज्यादा है, तो मतलब आपका हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज है. कितना हार्ट रेट आ रहा है? एक बॉक्स होता है 300 का, 2 बॉक्स होते हैं 300. 100 से कम है, 70 कंसिडर कर लो. ठीक है. सो योर हार्ट रेट इज अराउंड अराउंड 100 से कम है, 70-80 कंसिडर करो. ठीक है. अब आपने क्या देखी? पी वेव्स. अगर आपने पी वेव देखी और पी आर इंटरवल देखा साथ साथ, कैन यू फाइंड द पी वेव इन दिस ईसीजी? दिस इज द पी वेव. दिस इज द पी वेव. मैं आप लोगों को पी वेव मार्क करती हूँ. आप लोग जब तक देखोगे नहीं पी वेव, देखो वो टी अलग है और पी अलग है. सो पी वेव ये प्रॉपर नजर आ रही. अब अगर पी आर इंटरवल देखो, क्या पी आर इंटरवल इसमें फिक्स्ड है या वेरिएबल है? प्लीज नोट इट वेरी वेरी केयरफुली. इज इट फिक्स्ड और वेरिएबल? मैम हम V5 में पी वेव क्यों देख रहे हैं, लॉन्ग लीड 2 में क्यों नहीं देख रहे? भी मिले. देखो आपने रिदम और जो रिदम है, रेगुलरिटी है ना, वो आपको लॉन्ग उसमें समझ आएगी. नो इश्यूज. आप अपना लीड 2 में भी देख सकते हो. कोई भी लॉन्ग होगी ना, मुझे लॉन्ग चाहिए, लंबी चाहिए जब मुझे रिदम के इश्यूज देखने. ठीक है. मुझे मिस बीट्स देखनी है, अब तो लीड 2 अगर उन्होंने ऊपर लंबी दी हुई है, हम वो भी देख सकते हैं. तो लंबी वाली देख लो, बहुत क्लियर पी वेव्स नजर आ रही है, नो प्रॉब्लम्स. तो आपने लीड 2 देख ली, ठीक है, यू वर राइट कि देख. अब मुझे बताओ वेरिएबल है या फिक्स्ड है? ये वर्ड मुझे बोलना सीखो. पी आर इंटरवल वेरिएबल और इज इट फिक्स्ड? Fixed. इट इज फिक्स्ड. फिक्स्ड कितनी कैटेगरी होती है? अगर फिक्स्ड होता है तो हम कितनी कैटेगरी बनाते हैं? प्रोलॉन्ग, शॉर्ट, नॉर्मल. नल और शार्ट. इसको किस में लेबल करोगे? प्रोलॉन्ग, शॉर्ट, नॉर्मल. Prolonged, short, normal. If the PR interval is more than 5 boxes, you can appreciate कि ये 6 boxes आ रहे हैं, 7 boxes आ रहे हैं. If it is more than 5 small boxes, then it is considered as a prolonged. So if it is a prolonged PR interval and if it is fixed, you have only one differential. What is that one in differential? Is this First degree heart block. फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक. ठीक है. तो इस तरह से आप लोग अपनी चीजों को, और व्हाट इज द एक्सिस इन दिस? अगर हम एक्सिस कहें तो आप कहोगे एक्सिस की लीड्स ही नहीं दी हुई, तो वी कैन नॉट कमेंट ऑन द एक्सिस. उसके लिए हमें लाजमी 1 और AVF देखना है. ठीक है. नेक्स्ट, सी दिस ईसीजी. इस ईसीजी में आपको एक ही रिदम दी हुई है. तो एक ही रिदम अगर आपको दी है, डोंट बी कंफ्यूज विद इट. आपने स्टार्ट किया विद द पी वेव. कैन यू अप्रिशिएट पी वेव? यस, दिस इज द पी वेव. This is the P wave. 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 P wave. Second क्या देखना है? PR interval देखना है. PR interval. PR interval. PR interval. PR interval is fixed or variable? PR Fixed. interval. Variable. Yes, Mohammed. Variable. There is a dropped beat. Don't say drop beat. अभी आहिस्ता आहिस्ता अप्रोच बनाओ. देखो वो चार्ट्स जब तक अप्रोचेस नहीं बनाओगे ना,
ये तो तुम PR लोगों interval के fixed. है ना? Fixed है. हाँ, Fixed यूं PR बोल, interval. ठीक है। मैंने टेक्स्ट पढ़ना होता तो मैं टेक्स्ट पढ़ा के भाग जाती। Fixed PR interval. फिक्स पीआर, फिक्स को कैटेगराइज करो, नॉर्मल है, प्रोलॉन्ग है, शॉर्ट है। तो ये 3 to 5 बॉक्सेस में आ रही है कि नहीं आ रही? Normal. 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 नॉर्मल की नहीं है, कम ऑन, इट्स अ नॉर्मल, ठीक है, इट इज Yes. 3। Normal. Normal. Yes. अब देखेंगे मोहम्मद के टॉप बीट आ रही है कि नहीं आ रही। अब देखना, अब वाला स्टेप। तो ये वाली पी वेव के साथ क्यूआरएस है, ये वाली पी वेव के साथ Yes. क्यूआरएस है, Yes. इस पी वेव के साथ कुछ भी नहीं है। दिस इज अ Yes. ड्रॉप पीक। तो Yes. फिक्स्ड नॉर्मल विद ड्रॉप, दिस इज मोबिट्स टाइप 2। ये Type थोड़ा 2. सा Mobius type मानना 2. पड़ेगा, Yes. 1 और 2 में कंफ्यूज हो गए, बट यू हैव टू Yes. रिमेम्बर, ठीक है। Type 2. आपको प्रोटोकॉल उस तरह से अप्रोच करवाने का मकसद ये ताकि चीजें क्लियर हो। अब इधर आ जाओ, डोंट रीड द टेक्स्ट, वो मुझे पता है क्रॉप कर देना चाहिए था, बट आई डिडंट, मुझे उस टाइम जल्दी में किया नहीं, ताकि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो और वो पढ़ लेते हो नीचे। अब इधर शुरू करो, यहाँ से क्या नजर आ रही? पी वेव्स नजर आ रही है? कैन यू अप्रिशिएट द पी वेव्स? उन्होंने मार्क किया हुआ, खुद से कर दिया। Yes, लेट ma'am. मी मार्क इट मोर। See this P wave, this P wave, this P wave, this P wave. Now the second thing is look for the PR interval. यहाँ पे देखो P और QRS का डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस देखो, और यहाँ पे डिस्टेंस देखो। क्या लग रहा है, फिक्स्ड है या वेरिएबल है? Is it fixed or variable? Variable. It is variable. देखो ये कितना शॉर्ट है ये वाला, Variable. वेरिएबल। वेरिएबल PR इंटरवल में सेकंड चीज क्या देखनी है? RR। तो इज इट अ रेगुलर RR और इरेगुलर RR? RR का बताओ डिस्टेंस, जल्दी जल्दी बोलो। रेगुलर, Regular है. Regular. रेगुलर, रेगुलर, PR, कंजेनाइटल, 3rd degree हार्ट ब्लॉक। लाइफ इज इजी और नॉट? इजी। नाउ ये मैंने जो आपको डाली नहीं, आप लोगों के क्वेश्चन से रिलेटेड डाली है। कौन सी कंडीशन शॉकेबल है जहां पे आप शॉक देके बच्चे को बचा सकते हैं, और कौन सी सिचुएशन में आपको शॉक देने का कोई फायदा ही नहीं है? तो अगर मॉनिटर के ऊपर वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया है या फिर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया है या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, ये दोनों कंडीशन है शॉकेबल, ठीक है। एक दफा आपकी लाइन स्ट्रेट हो जाए, नो रोल फॉर शॉकेबल, या फिर पल्स लेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो। व्हाट डू यू मीन बाय पल्स लेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी? पल्स नहीं आ रही, जब आप पल्स पेशेंट की चेक कर रहे हो, नो पल्स, बट जब आप मॉनिटर अटैच कर रहे हो तो प्रॉपर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आ रही है। सी, ये प्रॉपर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही है, लेकिन जब आप पल्स को पैल्पेट कर रहे हो, नो पल्स, इसको भी आपने शॉक नहीं देना। नो शॉक, नो शॉक, जस्ट सीपीआर, ठीक है। ये क्लियर पता होना चाहिए कि ये रिदम है, क्योंकि एकेपी का एग्जाम है, आपको ईसीजीज दे के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, मैनेजमेंट भी पूछेंगे। तो अगर ये ईसीजी है तो क्या नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए? तो एसिस्टली और पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में यू विल गिव ओनली डू सीपीआर, व्हाइल टैकिकार्डिक और फिब्रिलेशन यू गो फॉर द शॉकेबल रिदम्स। Now diagnose these 3 conditions. क्या नजर आ रही है? पहली सिचुएशन क्या नजर आ रही है? ये क्या है? ये बीच में अक्सर क्या आ जाती है? ये क्या है? बोलो। It's a broad QRS. Simple तो बोलो। It's a broad QRS. Doctor, what I can see, I don't know what is this, but what I can see is simply broad QRS complex. तो अगर ब्रॉड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, एक नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, तो नोटिस करो कि ब्रॉड क्यूआरएस के साथ कोई पी वेव नहीं है। इट इज ओरिजिनेटिंग, दिस रिदम इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वेंट्रिकल। ये आपकी एक्टोपिक बीट्स हैं, ये वेंट्रिकुलर एक्टोपिक बीट्स हैं। इसका एक और नाम बाइजेमिनी भी होता है, ठीक है, कि हर एक के बाद पहले नॉर्मल आ रही है, फिर वेंट्रिकुलर ओरिजिन है, फिर नॉर्मल है, फिर वेंट्रिकुलर ओरिजिन है। दिस इज बाइजेमिनी। सेकंड क्या है हमारे पास? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, दिस इज वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। थर्ड क्या है? दिस इज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। Now we talk about QT interval. We have discussed in detail about the PR interval. We discussed the blocks.
Now we talk about the QT interval. QT interval मैंने आपको अच्छे से explain किया था. From the start of the Q till the end of the T, this is called QT interval. And for QT interval, you have QRS wave, you have T wave, and you have this ST segment with it. Okay. So how you going to calculate this QRS? So इसकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी डिफिकल्ट है, जिसका एक फॉर्मूला है बेजेट फॉर्मूला. बट आई विल मेक टेल यू अनदर वे जो कि क्रूड मेथड है, ठीक है, जिससे आपको असेस हो जाता है देखते ही कि प्रोलॉन्ग क्यूआर इंटरवल है कि नहीं. और वो क्या क्रूड मेथड है, क्या आपने थिंक 2 RR ले लेनी है, ठीक है, प्लीज गौर से सुनो. एक क्रूड मेथड 2 RR ले लेनी है और उसका जो बीच है ना वो मिडिल बना लेना है. ठीक है, जैसे कि 5 बॉक्सेस इधर आ जाएं, 5 बॉक्सेस इधर आ जाएं. 2 R के मिडिल में आपने अपनी एक लाइन खींच लेनी और आपने ये देखना है कि जो प्रीवियस R के साथ जो T था, ये जो T वेव है, ये इससे पहले फिनिश हो रही है कि नहीं हो रही. समझ आ रही है बात? 2 R वेव के दरमियान आपने एक लाइन खींची और देखना है कि टी वेव इससे पहले फिनिश हो रही है कि नहीं हो रही. अगर टी वेव उससे पहले ही फिनिश हो गई, दैट मींस यू आर डीलिंग विद नॉर्मल क्यूटी इंटरवल. और अगर यही टी वेव यहाँ पे जाके यानी कि हाफ लाइन को मिड वे को क्रॉस करके जा रही है, दैट मींस इट इज एसोसिएटेड विद प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल. अगर टी वेव पहले खत्म हो जाती है कंप्लीटली, दैट मींस नॉर्मल. अगर टी वेव खत्म नहीं होती, वो मिड वे को भी क्रॉस करती है, दैट मींस इट इज एसोसिएटेड विद प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल. दिस बेजेट फॉर्मूला ये आपने कैसे कैलकुलेट करना होता है, आपको आरआर इंटरवल चाहिए होता है और आपको एक का क्यूटी इंटरवल चाहिए होता है. तो जस्ट पुट द क्यूटी इंटरवल on the numerator side and under root of RR in the on the denominator side. ठीक है. अच्छा, ये लॉन्ग क्यूटी इंटरवल एक्चुअली क्या होता है, ये आप लोगों ने टास्क में भी अपने पढ़ा होगा, केसेस के ऊपर पूरा बुक में आपके, कि जो लॉन्ग क्यूटी इंटरवल है ना, देखो इट इज एसोसिएटेड विद नो सिम्टम्स. सी रिटन ओवर हियर, नो सिम्टम्स. तो इसमें कोई सिम्टम्स नहीं हो रहे होते. तो ये पिक कैसे होता है डॉक्टर? ये पिक जब होता है जब ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू टॉर्सिडे पॉइंटेस. ठीक है, तो ये नॉर्मल आपका क्यूटी इंटरवल है. ठीक है, और इसमें प्रोलॉन्ग है, यू सी इट्स वेरी प्रोलॉन्ग. ये आपको सिम्टम्स नहीं देगा, लेकिन जब ये कन्वर्ट होगा इनटू टॉर्सिडी पॉइंटेस, टॉर्सेड्स में कन्वर्ट होगा, तब आपको सिम्टम्स आएंगे. फेंटिंग होगी, सीजर्स होंगे, कोलैप्स होगा. तो ये कन्वर्जन कब होती है? कोई भी स्टिमुलेशन हो सकती है, एक्सरसाइज हो, स्पेशली स्विमिंग है, कोई भी स्ट्रेस है, अलार्म बजने का इमोशनल स्ट्रेस भी हो सकता है, इवन आपका फियर हो, कोई एंगर हो, कोई भी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो है वो सडनली आपके क्यूटी इंटरवल, प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल को कन्वर्ट कर सकती है इनटू टॉर्सेट्स के अंदर और फिर वो प्रेजेंट करेगा सिम्टम्स के साथ. सो प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल अगर आप इस ईसीजी में देखो, जो मैंने अभी आपको क्रूड मेथड बताया था, उस मेथड को अप्लाई करते हैं. ठीक है, कि क्या है. अब अगर आप यहाँ वाले ये वाले इसको लो, जस्ट लेट मी मेक द इजी फॉर यू. हम इस वाले 2 आर वेव्स को ले रहे हैं. ठीक है, अब हमने कंसीडर कर लिया कि इसके दरमियान 1 2 3 4 बॉक्सेस है. जस्ट मेक इट द लाइफ इजी. हमने 2 बॉक्स के बाद एक हाफ लाइन बना दी. ठीक है, तो समझे इस तरफ भी 2 बॉक्सेस हैं, सॉरी इस तरफ भी 2 बॉक्सेस हैं और इस तरफ भी 2 बॉक्सेस हैं. ठीक है, ये लिटिल एक बॉक्स को छोड़ दें. तो अब आप देखें कि इस मिडिल लाइन को इस टी वेव ने क्रॉस कर लिया ना. टी वेव इससे पहले फिनिश नहीं हुई. तो दिस इज लॉन्ग क्यूटी. ये आपने डायग्नोज कर लिया बाय अ क्रूड मेथड. ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे वो टिपिकल है, यू नीड कैलकुलेटर. बट क्रूड मेथड में कोई भी 2 आर वेव्स को देखा, उसके मिडिल में आपने लाइन खींची, टी वेव ने उसके मिडिल को क्रॉस कर लिया, दैट इज लॉन्ग क्यूटी. अब associated with different conditions, you should know about it. It is associated with electrolyte imbalances, medications, and they are inherited as well. तो पूरा एक task में case है, and you have already covered that. So what happened when at the point of torsade pointes, जो मैंने आपको दिखाया था, you have polymorphic. So the polymorphic word is important. So you have long and you have short. So long, short. This only you have QRS complex, wide QRS complex. You do not have P waves. And what happened? इसका जो
क्या होता है कि सम टाइम ये खुद ही स्पॉन्टेनियसली ठीक हो जाते हैं, साइनस रिदम खुद ब खुद अचीव हो जाती है, एंड सम टाइम ये प्रोग्रेस करते हैं इनटू कार्डियक अरेस्ट, प्रोग्रेस टू इनिशियली वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, बीटैक में जाएगा और फिर कार्डियक अरेस्ट में। तो जब टॉसिडी पॉइंटेस आपको एग्जाम में दिया जाए, मैनेजमेंट पूछी जाए, तो इसकी मैनेजमेंट क्या है, आपको मैग्नीशियम देना है, ठीक है, आईवी मैग्नीशियम देना है, और आपने कॉज को करेक्ट करना है कि टॉर्सेट्स क्यों हो रहा है। तो कॉज के अंदर लॉन्ग क्यूटी के जो कॉजेज हैं, आपने इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस उनको करेक्ट करना है, और स्पेशली आपने मैग्नीशियम इन्फ्यूजन देनी है, ओके। So what is the diagnosis over here? So even though it is written, don't worry about it. Just make the crude method in this. हम कौन सी दो आरवेज लें जो हमें अच्छी लग रही हो, जिसमें हमें कंफर्टेबल हो, तो just take these two. हम यहाँ पे कौन सी वाली ले रहे हैं, हम ये दो ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने जब लीड 2 को देखा, लॉन्ग लीड को देखा, हमने ये दो आरवेज देखी, और हमने इसके बीच में यहाँ पे डिस्टेंस बना दिया, ठीक है। जब हम यहाँ पे डिस्टेंस बना देंगे और हम देखेंगे कि क्या टी वेव उससे पहले फिनिश हो रही है, अगर आपकी टी वेव उससे पहले फिनिश हो रही है, देन यू विल नॉट गोइंग टू लेबल इट एज अ लॉन्ग क्यूटी, ठीक है। नॉर्मली उससे पहले पहले फिनिश हो जाती है, अगर उस तक भी पहुंच रही है ना, देखिए थोड़ी बहुत, अगर आप इसको देखें तो ये थोड़ा सा प्रोलॉन्ग है, बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग। अब व्हाट डू यू मीन बाय थोड़ा प्रोलॉन्ग, ज्यादा प्रोलॉन्ग, तो जब आप एक्चुअली कैलकुलेट करते हैं तो चिल्ड्रन के अंदर अगर मोर देन 440 मिली सेकेंड्स आता है, तो दिस इज as prolonged QT interval, okay. Segment, so what do you mean by segment? सेगमेंट आपने देखना है कि सेगमेंट आइसोइलेक्ट्रिक है, सेगमेंट ड्रॉप हो रहा है, सेगमेंट अपवर्ड जा रहा है। ड्रॉप की उन्होंने 3 वेज बताए कि इस तरह भी अप स्लोपिंग में ड्रॉप हो सकता है, डाउन में स्लोपिंग, तो इट डज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंस कि किस उसमें हो रहा है, बट एसटी सेगमेंट हमारे उसमें जो डिप्रेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू द एसटी सेगमेंट elevation, because in children we are not dealing so much with MAI. So MI is associated with elevation. So ST segment depression is associated with acute pericarditis. So if you see in this picture, sorry, ये ST segment depression है, elevation जो हमारे सिनेरियो में MAI नहीं होते बल्कि pericarditis के साथ होते हैं। So if you see in this picture, you can see कि जो ST segment है वो isoelectric straight नहीं है। So you can see over here, just pick it. You can see in this picture, ये ST segment ऊपर slope कर रहा है, ठीक है, ये isoelectric नहीं है। यहाँ पे भी इसको देखिए, ये upward, it should be like this, ये straight line नहीं है। तो ST segment elevation अगर आपको सारी लीड्स में मिल रही है and associated with PR depression, तो जो आपका PR segment है वो depress हो रहा है, so you can see over here the PR segment depression. So ST segment elevation, PR depression, these are associated with the acute pericarditis, and you will going to observe in all the leads associated with acute pericarditis, okay. Now we talk about our last talk on the ventricular hypertrophy. कि अब हम वेंट्रिकुलर जो हमारा सिर्फ एक रह गया कि चैम्बर की हाइपरट्रोफी हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, इट इज अ राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी और इज इट लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। तो व्हाट हैपेंड नॉर्मली, तो नॉर्मल क्या होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन द नॉर्मल ईसीजी जब एक न्यूबॉर्न पैदा होता है, जब, प्लीज लिसन इट वेरी केयरफुली, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आई एम टेलिंग यू, कि अगर एक न्यूबॉर्न पैदा होता है, ठीक है, तो उस वक्त क्या होता है, उसकी राइट साइड प्रीडोमिनेंस होती है, क्योंकि इसकी राइट साइड हाइपरटेंशन होती है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है। तो राइट जो V1 होता है आपका, V1 जस्ट आपका जो V1 होता है उसमें आपको क्या मिलती है, आर वेव्स मिलती, क्या मिल रही होती है आपको, आर वेव्स मिल रही होती है। V6 में आपको क्या मिल रही होती है, एस वेव्स मिल रही होती है, ठीक है। So what you find basically, let me make it very clear, just make it. तो न्यूबॉर्न में क्या फेज होता है, जब बॉर्न होता है बेबी, तो आपको इनिशियली V1 के अंदर what you find in the V1 में आपको मिलती हैं R waves, और V6 में आपको क्या मिलती हैं, S waves, ठीक है। जब बच्चा 3 साल का हो जाता है, 3 years I am saying, उसकी ECG अडल्ट की तरह हो जाती है,
क्या हो जाता है उसमें, नॉर्मली V1 में क्या मिलता है आपको, कंप्लीटली एस वेव्स, प्लीज मेक इट क्लियर, एस वेव, और V6 में क्या मिलता है आपको, आर वेव्स। ठीक है, ये नॉर्मल प्रोग्रेशन है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका राइट साइड डोमिनेंट होता है, और राइट साइड को आपकी प्रीकॉर्डियल लीड V1 देख रही होती है, तो आपको राइट साइड प्री डोमिनेंस की वजह से राइट एक्सिस डेविएशन होती है, V1 में आपको अपराइट वेव मिलता है। बट जैसे ही बच्चा 3 साल का होता है, उसका लेफ्ट साइड जो होता है वो हाइपरट्रोफीड हो जाता है, और लेफ्ट साइड को देखने के लिए आपके पास कौन सी लीड्स होती है, V5 एंड V6, जो कि आपको लेटरली आपके लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट को देख रही हो। तो आपको 3 इयर्स में ये आर वेव V1 से किस में ट्रांजिट हो जाती है, V6 में चली जाती है। तो मेक इट वेरी क्लियर, दिस इज कॉल्ड RS प्रोग्रेशन। इनिशियली आपकी R V1 में होती है, लेटर ऑन V6 में R वेव है। अब यही V1 में अगर आपको R वेव मिलती है, प्लीज लिसन इट वेरी केयरफुल, कि अगर आपको R वेव क्या मिल रही है, V1 नॉर्मल बर्थ वाला पैटर्न मिल रहा है, कि आपको V1 में R वेव मिल रही है एक बड़े बच्चे में, दिस इज एब्नॉर्मल, this is considered as right ventricular hypertrophy। अब मैंने इधर लिखा है ना R in the V1, और it should be upper limit of the normal, तो there is a limit for every, because I told you 1 से लेके 3 years तक gradually R wave कम हो रही होती, तो there is a limit। तो नॉर्मल लिमिट आपकी क्या होती है, अगर एक बच्चा है 3 years के बाद उसकी कोई R waves नहीं होती, तो अगर आपको आर वेव्स मिल रही है एटलीस्ट 10 मिलीमीटर की मिल रही है, एटलीस्ट ये 10 मिलीमीटर का वर्ड है, बट एज वाइज कैटेगराइजेशन होती है इसके अंदर, ठीक है, एज वाइज कैटेगराइजेशन होती है। तो अगर 10 मिलीमीटर यानी 10 बॉक्सेस की आर वेव मिल रही है एटलीस्ट, या उससे ज्यादा V1 के अंदर, दैट इज एसोसिएटेड विद राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। नॉर्मल बच्चे में V6 में आपको कोई एस वेव नहीं मिलती है, कोई एस वेव नहीं मिलती, सिर्फ और सिर्फ प्योर आर वेव मिलती। तो इफ यू गेट फाइंड एस वेव, अगर आपको एस वेव मिलना शुरू हो गई है V6 के अंदर, दिस इज ऑल्सो इंडिकेशन ऑफ राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। ठीक है, तो व्हाट यू फाइंड, इसमें क्या आपको दिख रहा है, यू फाइंड, ये क्लियर हो गया, V1 में आपको आर वेव मिले, V6 में आपको एस वेव मिले, डीप एस वेव, और एक और चीज है कि आपको राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी मिले। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी में आपको राइट एक्सिस डेविएशन मिलेगा। So if you find right axis deviation along with these R in the V wave, S in the V6, this is a diagnosis for right ventricular enlargement. Is this clear to everyone? Should I repeat it? There is no hesitation to ask any question. Please, we are on the same page. Please ask it if you have any concerns. You can write it as well on the chat, or you can directly ask. Is this point clear? Okay, let's see on the ECG. Okay, let's see on the ECG. This is the ECG. Now what you are finding in the ECG? Can you see the V1? Yes, arrow is clearly showing the V1. So what you find in the V1? That V1 के अंदर आपको more than 10 millimeters की R waves नजर आ रही हैं। आपको R waves नहीं मिलनी चाहिए थी। More than 10 millimeters की R wave you can appreciate in the V1. Can you appreciate? Yes, I can. Can you appreciate S wave in the V5 and V6? Yes, this S wave should not present. If they are present, that shows this is RVH. This is RVH. This is right ventricular hypertrophy. And the other criteria, what I told you, if there is right ventricular hypertrophy, the axis should be right axis. So right axis deviation के लिए आपने lead 1 और AVF को देखा. In lead 1 you have negative wave, and in AVF you have positive. So if lead 1 is negative, this means this is right axis deviation. The right ventricular hypertrophy along with the right axis deviation. Okay? Clear? Clear? Now we talk about the left ventricular enlargement. Left ventricular enlargement, how you will going to diagnose left ventricular enlargement? अब जो भी चीज आपने पढ़ी इसमें जो इंपॉर्टेंट थिंग जो सबसे पहले देखना है, तो एक चीज अगर याद करने को बोलूं,
तो देखो नॉर्मली आर वेव्स होती हैं, ठीक है। V6 में हमने क्या पढ़ा, नॉर्मली आर वेव्स है। V6 लीड के अंदर, आई एम सॉरी, ठीक है। सो इन द लीड में आपको क्या है, V6 में यू हैव आर वेव्स। तो यही आर वेव्स मौजूद है, लेकिन ये बहुत लंबी हो जाए, क्या हो जाए, बहुत ज्यादा लंबी हो जाए। और कितनी लंबी हो जाए इसके बारे में कहा जाता है, अगर ये मोर देन 25 मिलीमीटर हो जाए, ठीक है ना, कितनी हो जाए, मोर देन 20 to 25 मिलीमीटर्स की हो जाए, इतनी लंबी हो जाए, दिस इज एसोसिएटेड विद लेफ्ट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट। So just remember only this criteria, a very long R wave in the V6. And second, it is associated with left axis deviation. Okay. So let's see this picture. What you're going to see in the V6? A very long R waves. Can you all appreciate very long R waves? Can you appreciate very long R waves like this? You can see. V6 में you can see very long, and if you can count the box, 1 box, 2 box, 3 box, 4 box, 5, so it is more than 25, more than 5 boxes. अगर more than 5 large boxes हैं, more than 25 millimeter है, this is an indication of left ventricular enlargement. Okay, so left ventricular enlargement है आपका, और इसमें left axis deviation आप किस तरह देखोगे, 1 और AVF देख रहे हो, दैट इज नॉर्मल। तो इसमें आपको लेफ्ट एक्सिस डेविएशन नहीं है, तो इट इज नॉट 100% कि आपको लेफ्ट एक्सिस डेविएशन इसमें मिले, बट फॉर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी यू विल फाइंड राइट एक्सिस डेविएशन। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी मेक इट द लाइफ सिंपल. If you have very long R wave, especially more than 5 large boxes, you will consider it as a left ventricular enlargement. So yes, this is the end of our session. If you have any questions, you can ask. Yes. Yes, do you have any questions? No questions? Okay, then we just end our session over here. Good luck. Thank you so much everyone for your participation. What should I repeat, doctor? What should I repeat? This LVH and RVH. Okay, we have a recording for that, doctor. You can listen the recording and it will be clear for you. And LVH, basically I told you, look for the V6. Just look the R wave. If you have very tall R wave in the V6, it is associated with left ventricular hypertrophy. And you have a very long R wave in the V1. Long R wave means more than 10 millimeter. This is associated with right ventricular hypertrophy. Okay. Okay. Thank you so much. Allah Hafiz. Good luck for your exam. Bye bye. होगी ऑफलाइन?